Good morning, everyone. Today we are going to study the next topic of Chapter 4 Geography, the atmosphere. In last class, we studied about the atmosphere and its composition, with different gases and the different component of the atmosphere. In this class, we are going to study about the structure of the atmosphere. The layers of atmosphere are divided on the basis of the characteristics of the gases found at that height. Starting from the Earth's surface, atmosphere is divided into five major layers. They are troposphere. It is the primary layer that starts from the surface of the Earth and extended up to 18 to 15 km in height. It has around 80% of the mass of the atmosphere. It has almost all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstone occurring in this layer. Stratosphere. It is the second layer above the troposphere that start from where troposphere end and extend up to 50 to 60 km from Earth's surface. It has no cloud and the air is dry, containing very little moisture. It is most ideal for flying airplanes. It also contains a layer of ozone gas which protects us from the harmful radiation of the sun. Mesosphere. It is the third layer of that start from where stratosphere end and extend up to 95 to 120 km from Earth's surface. It is where most of the meteorites burn up upon entering. Thermosphere. It is the fourth layer that start from where mesosphere end and extend up to 400 km. It helps in radio transmission as the radio wave transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. The air in the thermosphere is very thin and the temperature can get extremely hot here. In this layer, the temperature rises very rapidly. With the increase in height, ionosphere is a part of this layer. Exosphere. It is the uppermost layer of the atmosphere. Has very thin air. It is start after thermosphere and extend fill space. It is the last and the thinnest layer of the atmosphere. Light gases like helium and hydrogen float into the space from this layer. वायुमंडल की संरचना. वायुमंडल या हमारा जो वातावरण जो है, जो गैसों का जो आवरण जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है, ये विभिन्न प्रकार के लेयरों में मिलता है. इसके विभिन्न प्रकार के स्तरों की विशेषता के आधार पर और जो गैस उसमें पाए जाते हैं उनके आधार पर ऊंचाई के सहारे इसको विभाजित किया गया है, बांटा गया है. और इसका शुरुआत जो है अर्थ के सतह से शुरू किया गया है और इसको 5 मुख्य लेयर्स में बांटा गया है. पहला ट्रोपोस्फियर. यह सबसे निचला स्तर का लेयर होता है जो कि सतह से पृथ्वी के सतह से शुरू होता है और इसका विस्तार जो है 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है. इसमें वातावरण का 80% हिस्सा मौजूद होता है और लगभग सभी मौसमी घटनाएं और जैसे कि वर्षा, कुहासा, हेलस्टोन और सभी प्रकार के मौसमी घटनाएं इसी वायुमंडल में होती है. स्ट्रेटोस्फीयर. यह दूसरा स्तर और लेयर है जो कि ट्रोपोस्फीयर के ठीक ऊपर पाया जाता है. यह शुरू वहीं से होता है जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर खत्म होता है और इसका विस्तार जो है 50 से 60 किलोमीटर जो पृथ्वी के सरफेस से
पृथ्वी के सरफेस से 50 से 60 किलोमीटर पर पाया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का बादल और हवा जो होती है यहाँ पे वो शुष्क होती है। इसमें कोई मॉइस्चर मौजूद नहीं होता है। इसी के चलते ये सबसे ज़्यादा सैद्धांतिक माना गया कि इस क्षेत्र में एरोप्लेन जो है उड़ा करती हैं और साथ ही साथ यह लेयर जो है ओजोन गैस को अपने में लिए हुए होती है, जो कि हमें उन विनाशकारी किरणों से बचाती है जो सूर्य से निकलती हैं। मेसोस्फीयर यह तीसरा लेयर है जो कि शुरू होता है स्ट्रेटोस्फीयर के ख़त्म होने से और जो कि 95 से लेकर 120 किलोमीटर में फैला हुआ होता है पृथ्वी सतह से और यह अधिकांशतः मेटेरॉइड्स यहाँ पे आके जल जाते हैं। इसी के चलते इसको मेसोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। थर्मोस्फीयर यह चौथा लेयर है जो कि शुरू मेसोस्फीयर के अंत से होता है और इसका विस्तार जो है 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। यह खास करके रेडियो ट्रांसमिशन में हमें मदद करती है, जो कि पृथ्वी से भेजी गई जो विकिरण रेडियो ट्रांसमिशन होती है उसको पृथ्वी पे वापस लौटा देती है। इसी के सारे जो है हम टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग जो है कर पाते हैं और यह लेयर जो है इसमें टेम्परेचर जो है बहुत ही तेज़ गति से विकसित हो जाता है ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ। आइनोस्फीयर जो है वो इसी लेयर का ही भाग है। एक्सोस्फीयर यह सबसे ऊपरी लेयर है वायुमंडल का और यह बहुत ही पतला होता है वायु में। यह शुरू होता है जहाँ पे थर्मोस्फीयर ख़त्म हो जाता है और यह इसका फैलाव जो है बाहरी स्पेस या अंतरिक्ष तक पाया जाता है और यह सबसे अंतिम और सबसे पतला वायुमंडल है। साथ ही साथ यहाँ पे कई लाइट हल्की गैसें यहाँ पे मिलती हैं जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन और जो कि हमारे स्पेस में अंतरिक्ष में ये गैसें तैरती रहती हैं।